Let's start with exercise 17D. 17D is a miscellaneous exercise. Means there is a mix of sums from 17A, B, and C. Okay, so we'll do the sums which are similar to those exercises which we have done. Like the first one. Firstly, do you remember the properties we studied in the first exercise, the A exercise? What was the property for a circle, center, and if this is a chord? Perpendicular from the center. If I drop it bisects the chord. Okay, this was one property we did. Then another property was if there are two chords, let's say like no. If this is the distance between the chords. If chords are equal, let's say this chord is also 10 centimeter and this chord is also 10 centimeter. If the chords, the length of the chords are equal, then the distance will also be equal from the center. Okay. The distance from the center will also be equal. Okay. Chord का length अगर same है तो chord का distance भी same होगा. Okay. Then C exercise में we studied two property. One, equal arcs या equal chords make equal angle. जैसे for example, if AB and BC are equal, so AB जो angle बनाएगा center में और BC जो angle बनाएगा center में, ये वाला angle, let's say this is O. तो अगर AB arc और BC arc same है, तो जो angle वो बनाएंगे center में, वो angle भी same होगा. Equal arcs make equal angle. Okay, ठीक है. So let's read the first question. What is it given? Read it yourself. Radius of a circle is 13 and length of one of its chord is 24. So let's say one chord is 24. This chord is 24, let's say. Okay, this is the center of the circle. Find the distance of the chord from the center. Chord का center से distance मतलब क्या बनाना होता है? ये सीधा बना दूंगा, ये क्या होगा? Distance of the chord from the center. यही होता है distance of the chord from the center. तो ये है आपका distance जो आपको find करना है. Let's say the center is O and the chord is AB, and let's name this point as P. You will need to draw the diagram. ये श्रुति बताओ, रेडियस कैसे बनाएंगे? कैसे, क्या ज्वाइन करूं? हाफ सर्कल, ये ऐसे. रेडियस बताओ मुझे, रेडियस कैसे बनाएंगे? जिनको आता है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो. सोचो, आराम से आ जाएगा आपको. किया है आपने, ऐसे सम्स किए है ना, याद है ना? तो उसमें रेडियस कैसे बना देते हम, ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता था? ओ बी या ओ ए, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया ओ ए को. दिस इज द रेडियस. ठीक है, अब ये पूरा 24 है ए बी, तो ए पी क्या होगा? 12 होगा, बट इसको हमें लिखना होगा यहाँ पे. वी विल हैव टू राइट दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore AP equals PB, and reason will be perpendicular from center bisects the chord. I should see the reasons in every book, otherwise I will cancel the sum. मुझे अगर reasons नहीं दिखे book में तो मैं कट कर दूंगा सीधा. So AP is 12. Radius दिया हुआ है क्वेश्चन में? 13 दिया हुआ है. Now how to find the distance? Pythagoras. चलो apply Pythagoras.
यस, दिया हुआ है ना सेंटीमीटर क्वेश्चन। आगे आंसर सबको? 5 इज द आंसर। Next question number 3. See, we are doing sums which are based on exercise 17A and 17C. ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्विंग नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सम है. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट. सी क्या क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, हाउ मेनी पॉइंट्स दिस सर्कल कैन हैव इन कॉमन. मतलब 2 सर्कल्स बनाने बोले डिफरेंट रेडियस के रैंडमली. ठीक है, तो मैं रैंडमली अगर 2 सर्कल बनाऊंगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे. ठीक है, कोई ऐसे बना लेगा, एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल ऐसे डिफरेंट रेडियस के. कोई ऐसे बना लेगा, एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे. ये तीनों केस पॉसिबल है. ठीक है, एक और केस पॉसिबल है, ये ऐसे और इसी के ऊपर एक सर्कल बना दोगे कुछ ऐसे. 2 सर्कल्स अगर बनाने बोला तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है. दिस में बी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग 2 सर्कल्स. हाँ, उसके अंदर मतलब यही वाला केस है वो, मतलब इसके अंदर ऐसे एक सर्कल अंदर बना दोगे आप, ये समझो यही केस है. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कैसे सर्कल बनाओ, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ड्रॉ 2 सर्कल्स. तो बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, ड्रॉ 2 सर्कल्स. नाउ दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी पॉइंट्स आर डू यू हैव कॉमन इन दीस 2 सर्कल्स. ठीक है, तो पहले एक एक केस में देखते हैं. फर्स्ट केस में डू यू फाइंड एनी पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल. ओके, तो यहाँ पे आएगा 0 फर्स्ट केस के लिए, देयर इज नो पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल. सेकंड केस में डू यू फाइंड एनी पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल. ये सेकंड केस है हमारा, तो ये पॉइंट दिख रहा है एक, ये एक पॉइंट कॉमन है इन दोनों सर्कल के बीच में, एक पॉइंट कॉमन है ये इन दोनों सर्कल के बीच में, तो यहाँ पे आंसर होगा 1. थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो कितने पॉइंट्स कॉमन दिख रहे हैं, 2 पॉइंट्स आर कॉमन बिटवीन दिस सर्कल्स, तो थर्ड केस में आंसर विल बी 2. ठीक है, 3 पॉइंट्स कॉमन वाला नहीं बना सकते आप. ठीक है,
और ये जो फोर्थ केस है, ये फोर्थ केस है, इसमें तो ओवरलैपिंग सर्कल चाहिए। जब ओवरलैपिंग होता है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। आप काउंट ही नहीं कर सकते बिकॉज सारे पॉइंट्स ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे फोर्थ वाले केस के लिए आंसर होगा इंफिनिटी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ करके आंसर लिख सकते हो, रफली ड्रॉ करके आंसर लिख दो। हाँ हाँ, चारों केस बनाओ और चारों का आंसर लिखो। फास्ट फास्ट। जल्दी, we have to do 6 more sums. Copy this. Next question number question number 6. See, in a circle of radius 10 centimeter, AB and CD in a circle of radius 10 centimeter, AB and CD are two parallel chords of length 16 centimeter and 12 centimeter respectively. दो chords है, दोनों का length आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? Calculate the distance between the chords if they are on same side of the center and opposite side of the center. ऐसा सेम सम किया है हमने ये एक्सरसाइज में। yes, तो इसमें दो पार्ट्स में आपको सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं सेम साइड ऑफ सेंटर। उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, same side of the center when chords are on same side of center। ऐसे लिख दो फर्स्ट पार्ट, chords are on same side of center। जो ये सेंटर है, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बनाई और दूसरी कॉर्ड यहाँ पे। टू पैरेलल कॉर्ड्स, दीज कॉर्ड्स आर पैरेलल। वो ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर हो जाएगा, वो सेकंड केस है। सेम साइड ऑफ सेंटर बनाओ।
दोनों कॉर्ड्स का मेजरमेंट दिया है आपको 16 और 12, तो ये ऊपर वाली कॉर्ड 16 होगी, ठीक है। अगर आपके डायग्राम में जगह नहीं होती तो आप ऐसे एरो करके बाहर भी लेबल कर सकते हो, डायग्राम अगर आपका ज्यादा छोटा बन जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स? सबसे पहले तो आप यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओ जो दोनों कॉर्ड पे जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये बड़ा वाला कॉर्ड इज ए बी एंड द स्मॉलर कॉर्ड इज सी डी। सेंटर इज ओ, the first point of intersection is P and the second point of intersection is Q. Draw the diagram neatly. Now you have to find the distance between the chords. इसमें chords के बीच का distance क्या है? ये देखो, ये एक chord है और ये एक chord है, इनके बीच में क्या distance दिख रहा है? ये है ना इनके बीच का distance, ये है करेक्ट, ये इनके बीच का distance है, ये क्या है? PQ, ठीक है। तो मुझे PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मुझे रेडियस दिया हुआ है? दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो मैं रेडियस के लिए ओ ए को ज्वाइन करो, दो कॉर्ड्स बनाते हो ना तो दोनों के लिए रेडियस बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट कॉर्ड ओ ए से रेडियस बनाया और दूसरा ओ सी से बना, ऐसे ओ ए इक्वल्स ओ सी इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, दे आर द रेडियस। These are your radius, ठीक है। अब कॉर्ड ए बी का मेजरमेंट कितना है? बड़ी वाली कॉर्ड 16 है, ठीक है। तो ए पी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली सी डी 12 है, तो सी क्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। दोनों के लिए आप रीजन क्या लिखोगे? दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए एक ही रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लिख दो। बहुत ही जरूरी है रीजन लिखना। मैं कह रहा हूँ 3 मार्क के समय अगर 2 रीजन नहीं लिखा 2 मार्क चली जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं सम सॉल्व करके। रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपको ये मेजरमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 8 and this is 6. Now focus on the first triangle, this triangle. In this triangle, can you find OP? Find it. ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, करो। In triangle OPA, using Pythagoras theorem, OP square plus AP square equals OA square. ठीक है। Now which triangle should I take? OPQ। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें क्या ढूंढोगे? OQ। चलो फाइंड करो। शांति रखो, बाकी लोगों को भी करने दो। आंसर मुझे भी पता है, मैं बोल रहा हूँ आंसर। अगर आपको आंसर मिल गया है तो टेक्स्ट बुक के पीछे चेक करो और सेटिस्फैक्टरी बैठो, खुश होके। जो अननोन है वो ढूंढना है। 3 साइड्स में से देख लो क्या अननोन है। 2 साइड्स आपको पता है।
डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज PQ. अब PQ कैसे मिलेगा? OQ माइनस, देखो ये आपका OP का वैल्यू है और ये पूरा आपका OQ है. इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिलेगा. डन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? द कॉर्ड्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर. ठीक है, तो समझो अगर ये सेंटर है तो एक कॉर्ड यहाँ पे बनाया है और एक कॉर्ड समझो यहाँ पे बनाया है. ठीक है, कॉर्ड की मेजरमेंट सेम है. एक 16 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और एक 12 सेंटीमीटर की. ये सेंटर है, परपेंडिकुलर बना देते हैं. नाम दे दो, एक कॉर्ड इज वन कॉर्ड इज AB, अनदर कॉर्ड इज CD. अब ज्वाइन कैसे करूं? रेडियस. निशा बताओ. OB, OA कर सकता हूँ और नीचे वाले कॉर्ड के लिए ठीक है OB एंड OD कर लेते हैं. ओके, दीज आर द रेडियस. रेडियस भी सेम ही है, सब कुछ सेम ही है. 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर है. दिस इज 8, ये 8. इसको नाम दे दो P और Q पॉइंट्स को. सेम ही होगा पूरा का पूरा सम. Perpendicular from center bisects the chord. So AP equals PB and CQ equals QD. डायरेक्ट लिख दिया. अब दोनों ट्रायंगल में एक एक बार पाइथागोरस करो फटाफट. वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने पिछले पार्ट में किया है. सेम वैल्यूज फटाफट कर दो. OP मिलेगा आपको.
डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड क्या होगा यहाँ पे? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड मतलब PQ ही है यहाँ पे भी, ठीक है। ये अगर देखो मैं जो रेड से ब्लू से मार्क करके बताता हूँ आपको, ये है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, ये। करो फाइंड फास्ट। ठीक है, PQ क्या मिला? ये 6 मिला और ये 8 मिला, तो 8 + 6 इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर, अच्छा क्वेश्चन डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। बनाना पड़ेगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना इसमें आपको। रेडियस के लिए मुझे ज्वाइन करना होगा, समझो OA या OB, कुछ भी एक ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे इसे लिखना होगा, ज्वाइन OA। क्या क्या दिया हुआ है मुझे? ये जैनम क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यूज बताओ। AB 32, AB 32 सेंटीमीटर, और वैल्यूज बताओ ना क्या दिया। और रेडियस 20, तो ये 20 होगा यहाँ पे, रेडियस 20 दिया है, ठीक है। अब AB 32 दिया है, तो मैं क्या स्टेप लिखूंगा यहाँ पे? OC is perpendicular to AB and therefore AC equals CB। रीजन आपको पता है।
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आपको ये मिल जाएगा 16 16। Now what do you have to find in the question? CD फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अभी ये इस ट्राइंगल से आप क्या फाइंड कर पाओगे? ओसी कर लो, फाइंड ओसी। फाइंड करो, खुद से फाइंड करना है ओसी, मैं सॉल्व नहीं करने वाला। करो सॉल्व, फास्ट फास्ट। So OC is you will get it as 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है OC। मुझे ढूंढना क्या है? CD, करेक्ट। क्या आपको ये पूरा OD पता है क्या है? यस, आप ऑब्जर्व करो, OD क्या है? सर्कल का रेडियस ही है ना OD। OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर रेडियस है तो आपको रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी पता है। So OD is nothing but OA, which is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप CD ढूंढ सकते हो। तो CD क्या होगा? पूरा OD माइनस OC, दैट इज 20 माइनस 12, 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8।
If P is the midpoint of chord AB, दो chords draw किए यहाँ पे. अब now these sums are based on exercise 17C. अच्छा, tell me what is OQ and OP? OQ और OP है क्या? क्वेश्चन में दिया है, दे आर परपेंडिकुलर, तो हम नहीं कह सकते. In the given figure, AB and CD are two equal chords. See, AB is equal to CD. AB and CD are two equal chords. P is the midpoint of chord AB and Q is the midpoint of chord CD. मतलब P भी midpoint है और P भी midpoint है. P and Q are midpoint. अभी क्या दिया है हमें? P and Q are midpoints बोला है, ठीक है. और आपको एक एंगल की वैल्यू भी दी है, एंगल POQ. व्हाट इज इट? 150 डिग्रीज, ठीक है. और आपको ढूंढना क्या है? APQ. पे अटेंशन. सी, मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इसका मतलब क्या होता था कि अगर ये कॉर्ड है, सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. और इसका कोरोलरी मतलब इसका कॉन्वर्स क्या थ्योरम था? सेम इसके जैसा, कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हुई है, अगर वो मिड पॉइंट है, अगर वो बाइसेक्ट करती है तो इट विल बी परपेंडिकुलर आल्सो. इसका उल्टा. करेक्ट? क्या बता रहा हूं मैं? अगर परपेंडिकुलर दिया होता है तो हम कहते हैं कि इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और अगर बाइसेक्ट्स ऑलरेडी कर रहा है तो इट विल बी परपेंडिकुलर आल्सो. ओके, तो यहाँ पे बाइसेक्ट ऑलरेडी कर रहा है, ओपी इज बाइसेक्टिंग एबी. ओके, देयरफॉर ओपी विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू एबी. करेक्ट ना? ये ओपी परपेंडिकुलर होगा ना एबी को. यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट दैट ओपी बाइसेक्ट्स chord AB. Therefore, OP is perpendicular to AB. Reason same. From center bisects the chord. ठीक है, आपको लिखो स्टेटमेंट. एंड सिमिलरली लिखो यहाँ पे OQ is perpendicular to CD. Then now see this angle which I have marked is 90 degrees. ये आपको मिल गया है, ठीक है. ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल POQ हमें दिया हुआ है. कितना दिया है?
ये 150 डिग्रीज दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ओपी और ओक्यू का क्या रिलेशन है? वो इक्वल है क्या? पहली बात, ओपी और ओक्यू क्यों इक्वल है? अगर है तो क्यों है? कौन से एंगल्स इक्वल है? वो ट्राई कर रहा है, समझे? बोलने दो। बताओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगाओ, ओपी और ओक्यू का रिलेशन क्या है और क्यों है? अगर इक्वल है तो रेडियस तो नहीं है, ओपी कैसे रेडियस हो गया? ओ ए या ओ सी रेडियस होगा। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल, एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। ओपी और ओक्यू क्या है? डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर से। कॉर्ड का सेंटर से यही डिस्टेंस है ना, ओपी और ओक्यू। तो अगर ये कॉर्ड्स इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल ही होगा। ये रीजन आपको लिखना है। आप क्या लिखोगे? कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। सो इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. Therefore, OP equals OQ. ये दोनों सेम होगा। सी सो अगर आपको ओपी और ओक्यू सेम मिला है, इफ ओपी एंड ओक्यू आर सेम, तो मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू पी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ओके, तो दो एंगल सेम हो जाएंगे। कौन से? ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। ठीक है, लेट्स नोट डाउन। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, angle OPQ is equal to angle OQP, isosceles। तो इन दोनों को हम इक्वल्स टू x कर लो। सो x प्लस 150 इक्वल्स 180।
ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है? ए पी क्यू। ए पी क्यू मीन्स हमें ए पी क्यू ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये वाला। कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल? देखो ये जो एंगल है ए पी ओ, ये कितना है? ये 90 है ना एंगल पूरा, ये पूरा 90 है। इस पूरे एंगल में से मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो किसको माइनस करना है? ये वाले पार्ट को माइनस करना है, मतलब 15। तो 90 माइनस 15 इज योर आंसर। वैल्यू ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, एंगल ए पी क्यू इज एंगल ए पी ओ माइनस एंगल ओ पी क्यू, दैट इज 90 माइनस 15, 75 डिग्री। नाइनटी बनाया बनाया होगा ना आपने डायग्राम में। ठीक है, डन। चलो क्विकली नेक्स्ट सम, फटाफट। कॉपीड? Question number 9. See, they have given you diameter AC. Diameter AC, center O. OB is the radius of the circle. Y and X are any point on the circumference of the circle. Y and X are any point on the circumference of the circle. ठीक है? Now, one information is given that arc AXB is half of arc, half मतलब 1/2 of arc BYC. ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है। आर्क AXB जो है वो BYC का हाफ है, दिख रहा है? ये है आर्क AXB और ये है आर्क BYC। दिख भी रहा है आपको कि आर्क AXB हाफ है BYC का, ठीक है? अब जो रिलेशन आर्क का होता है वही रिलेशन एंगल का होता है ना? जैसे कि इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो आर्क AXB है इसने कौन सा एंगल बनाया है? AOB। AXB सामने आपको देखना है हमेशा कि सेंटर में क्या एंगल बना है, सेंटर में, ठीक है? आर्क्स AXB ने AOB बनाया और BYC ने क्या बनाया? BOC बनाएगा, करेक्ट? BYC। तो AXB की जगह पे आप लिखो एंगल AOB। AXB ने AOB बनाया है और BYC की जगह पे लिखो, क्या लिखेंगे BYC की जगह पे? एंगल BOC। ये लिख दिया और इसका रीजन लिखो, इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल, लिख दो। ठीक है, अब अगर इस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 एंगल AOB इक्वल्स एंगल BOC। ठीक है, इसको मैं देता हूं 1। नाउ टेल मी, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा 180 है और ये 2 एंगल से बना है, AOB और BOC। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्रीज। रीजन क्या आएगा इसका? लीनियर पे, इन दोनों का टोटल 180 है कि नहीं? अब BOC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस AOB। BOC क्या है? 2 AOB है ना? BOC इज नथिंग बट 2 AOB। तो यहाँ पे BOC की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा?
AOB प्लस 2 AOB कितना हो गया? इसको मैं आपको और सिंपल तरीके से करके बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे डायग्राम एक बार देखो, समझो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा, डबल होगा इसका, तो ये टोटल 3x हो गया, वही यहाँ पे लिखा है मैंने 3AOB। ओके, x के टर्म में करते तो शायद इजी हो जाता, और कर सकते हो आप कुछ नहीं। तो 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। तो AOB आपको ढूंढना क्या था क्वेश्चन में? BOC। तो AOB अगर 60 है तो BOC कितना होगा? ध्यान से देखो, डबल है ना, BOC मिल गया 120। डन। क्वेश्चन नंबर 10। Circumference of a circle with center O is divided in 3 arcs APB, BQC और CRA। मतलब ऐसे रैंडमली समझो 3 पॉइंट्स बनाता हूं मैं, A, B और C। समझो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। AB के बीच में पॉइंट है P, BC के बीच में है Q और C इसके बीच में है R। जैसे सर्कल है, 3 आर्क्स बनाए हैं उन्होंने। APB is 1 arc, QC नहीं, BQC is another arc, और CRA is the third arc। 3 आर्क दिख रहे हैं ऐसे, ARC प्लस CRA बोला उन्होंने, वर्ड यूज किया, ठीक है। ये 3 आर्क्स है, ओके। अब कुछ रिलेशन दिया है आर्क के बीच में, क्या दिया है? दैट आर्क APB अपॉन 2 इक्वल्स आर्क BQC अपॉन 3 इक्वल्स आर्क CRA अपॉन 4। ये ऐसा इक्वल दिया है। ध्यान दो पहले, फिर कॉपी करना। पहले सुन लो एक बार, थोड़ा सा डिफरेंट समझिए। ये तीनों इक्वल दिया है, मतलब तीनों की वैल्यू सेम है। मतलब आर्क APB अपॉन 2 जो वैल्यू आएगी, आर्क BQC अपॉन 3 जो वैल्यू आएगी, और आर्क CRA अपॉन 4 वो वैल्यू सेम होगी, बिकॉज बीच में इक्वल टू की साइन है नहीं, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू सेम है, तो हम क्या करते हैं? लेट देम बी इक्वल टू के लेते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल A अपॉन 2 इक्वल्स B अपॉन 3 इक्वल C अपॉन 4 है, तो ऑल 3 आर इक्वल टू के उनकी कॉमन वैल्यू है जो सेम है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये कर लिया मैंने इक्वल्स टू के। अब मुझे बताओ, जो आर्क होता है वही एंगल होता है। जैसे आर्क APB की जो वैल्यू होगी वही एंगल AOB की होगी, तो आर्क APB को आप रिप्लेस करो एंगल AOB से, आर्क BQC को किससे रिप्लेस करेंगे? एंगल BOC से, और आर्क CRA को एंगल COA से, इक्वल्स टू के। लिखा? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल AOB अपॉन 2 इक्वल्स के, एंगल BOC अपॉन 3 इक्वल्स के, एंगल COA अपॉन 4 इक्वल्स के। ये तीनों की वैल्यू के ही है, तीनों की वैल्यू के है,
तो मैंने तीनों को अलग अलग से लिख दिया इक्वल्स टू के। इससे क्या होगा, एंगल एओबी मुझे क्या मिलेगा 2k, एंगल बीओसी क्या मिलेगा सीओए मिलेगा 4k। ये है 2k, 3k और 4k। पूरा क्या होता है, टोटल 360 होता है, करेक्ट। तो 2k प्लस 3k प्लस 4k क्या होगा 360 डिग्रीज इक्वल्स टू, तो 9k इक्वल्स 360, तो k इक्वल्स 40 डिग्रीज। अब आप क्या बीओसी एंगल ढूंढ सकते हो, क्या था एंगल बीओसी 3k था, बस मिल गया आंसर। थोड़ा सा अलग था ये सम। समझ में आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन इक्वल्स टू के लेना सिर्फ। एक्स भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो वैसे तो वेरिएबल, बट इन टाइप के सम्स में हमेशा के लेते हैं। आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में नहीं याद आए एक्स लेगा तो भी चलेगा। एक और सम करने वाले हैं। So now come to exercise 17b. Copy this first and come to exercise 17b. Come to exercise 17b. Question number 7. See the seventh sum. The length of a common chord of two circles, two intersecting circles, is 30 सेंटीमीटर। मतलब समझो ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। दोनों सर्कल एक्चुअली, एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है, तो वो डिफरेंस दिखना चाहिए। और ये होता है इन सर्कल्स के बीच के कॉमन कॉर्ड। लेट्स से वी नेम इट एज AB. AB is the common chord. Between the two circles. ये इनका सेंटर है, ठीक है। We need to find the distance between their centers. समझो एक के सेंटर को हम लेते हैं O और इसको लेते हैं P, P, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। डायग्राम बनाओ फास्ट। Now join OA and OP.
OA and OP are radius of two circles. ठीक है। अच्छा, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा? अच्छा, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, मतलब AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। कॉमन कॉर्ड AB है ना, AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द टू सर्कल इज 50 एंड 34। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस मिलता है। तो पहले जो बड़ा वाला रेडियस होगा वो क्या होगा? 50/2, दैट इज 25। और जो छोटा वाला रेडियस है PA, दैट विल बी 34/2, 17 सेंटीमीटर। ये होगा 25 और ये होगा 17। ठीक है। नाउ सी, राइट, OP is perpendicular to AB। देखो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इस सर्कल को, सिर्फ एक सर्कल को देखो, तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर हुआ। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, OP क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप नाम दे दो, समझो M। सो AM इक्वल्स MB। पूरा AB 30 है तो AM क्या होगा? 30। थर्टी अपॉन 2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, ये मिला 15। अब आपको क्या करना है? आपको इंडिविजुअली एक बार ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है, आपको OM मिलेगा, और एक बार ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करना है, आपको MP मिलेगा, और दोनों को ऐड करना है। करो फास्ट। यस, पाइथागोरस। इन दोनों ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करो। मैं नाम लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे, इन ट्रायंगल AMO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इन ट्रायंगल AMP using Pythagoras theorem। AM square plus MO square equals, खुश रुक जाओ, AM square plus MO square equals AO square। जल्दी अप्लाई करो, इससे आपको OM की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व सॉल्व फास्ट। एंड हियर AM square plus MP square equals AP square। तो इससे आपको MP की वैल्यू मिलेगी। And then in the end you will write distance between the centers is OP, that is OM plus MP। यहाँ पे इसका वैल्यूज लिखो, आंसर आ जाएगा।
OM you will get it as 20. And MP you will get it as 8 centimeter. So final answer. That's it for today.